Okay, so let's start. So yesterday we have uh, discussed about transport layer and then TCP and its two important protocols, right? So today we'll be discussing uh, the other protocol, which is of transport layer itself, which is stream control transmission protocol. Okay, just give me a yeah, I'm back. So hope my screen is visible to you all, right? Is my screen visible? Guys, is my screen visible to you all? Am I audible? Yes, sir. And is my screen visible? I'm sharing my screen. Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Visible, sir. Okay, cool. Thanks. Thanks for the confirmation. Okay, so let's start with another protocol after TCP and UDP, which is Stream Control Transmission Protocol. Okay, so what is it? Stream Control Transmission Protocol is a connection-oriented network protocol for transmitting multiple streams of data simultaneously between two endpoints. Okay, that have established a connection in a computer network. तो क्या करता है ये मल्टीपल स्ट्रीम्स के थ्रू थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है दो एंड पॉइंट से जो कि कनेक्टेड है एक कंप्यूटर नेटवर्क पे ठीक है sometimes known as next generation of transmission control protocol. Let me admit someone is waiting, I guess. Okay, so it is sometimes it is also known as next generation transmission control protocol. Now, stream control transmission control protocol makes it easy to support a telephone connection over the internet. Okay. Uh, SCTP is an Internet Protocol Transport Layer Protocol. Okay, it ensures reliable and in-sequence data transmission so that data units sent over network arrive completely and in the right sequence. Okay, to the application or user at the endpoint. For some transmissions such as file or record, the sequence preservation is essential. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में क्या होता है SCTP? एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, मल्टीपल स्ट्रीम्स से साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर करता है टू एंड पॉइंट से। इसका मेनली यूज होता है टेलीफोन कन्वर्सेशन में इंटरनेट पे ओवर इंटरनेट। ओके, अभी क्या होता है इट इज सिमिलर टू टीसीपी से काफी सिमिलर है बट इट आल्सो प्रोवाइड्स मैसेज ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर लाइक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्योंकि वॉइस ये रिलायबल डेटा भी ट्रांसफर करता है। इट टेक्स द बेस्ट पार्ट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, ये याद रखना है आपको कि ये टीसीपी और यूडीपी का जो बेस्ट फीचर्स है तो उसको कंबाइन करता है ये प्रोटोकॉल। It also provides message data transfer like user data protocol, making it useful for end-to-end internet communications. Okay, in many ways, both TCP and UDP are underlying concepts that made SCTP possible. Also, unlike TCP, SCTP ensures the complete concurrent transmission of several streams of data in units called messages between connected endpoints. It's also more efficient than TCP. TCP is very efficient when it comes to data recording, thus relieving the server of the unnecessary overhead of recording. A telephonic connection requires signaling information that controls the connection is sent simultaneously with voice and other data. So SCTP is designed to make this task easier. It also simplifies the management of connections over a wireless network and transmission of multimedia data. ठीक है, काफी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी एक फीचर है SCTP में, ये आप लोग को याद रखना होगा, इसको बोलते हैं मल्टी होमिंग। दिस इज अ वेरी पॉपुलर फीचर्स ऑफ SCTP। Multi-homing क्या होता है? Multi-homing is a process of connecting a network or a host to multiple networks simultaneously, which is done to increase reliability or performance. ठीक है? एक नेटवर्क और एक या होस्ट को मल्टीपल नेटवर्क्स से जोड़ना, which is done due to performance और reliability को increase करने के लिए। So telecommunication systems में क्या होता है? They are highly prone to time delays. ठीक है? पहले ऐसा होता था
मल्टी होमिंग सिस्टम क्या होता है? इनेबल्स विद मल्टीपल इंटरफेसेस टू यूज वन ओवर द अदर विदाउट वेटिंग. HTTP multi-homing means that the endpoint which are connected can have different IP addresses associated with it. ठीक है, different IP addresses होंगे तो एक IP address पे अगर नहीं लग रहा है तो दूसरा IP address को ढूंढेगा. In simpler way, multi-homing refers to sending data to an alternate IP address if in case due to any issue with the primary or original IP address is unreachable. ठीक है, that is why it is reliable भी इसीलिए है क्योंकि it uses multiple IP addresses. Therefore, HTTP can connect or establish multiple connection paths between two endpoints. In this, there is an original primary interface or secondary interfaces. So during establishment of a connection, acknowledgement process validates the IP address and manages the round trip time (RTT) for each individual addresses. ठीक है? The RTT calculation enables the communication to migrate to a secondary interface. ठीक है? इसमें ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है में एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस वैलिडेट करता है कि आईपी एड्रेस एंड मैनेजेस द राउंड ट्रिप टाइम फॉर ईच इंडिविजुअल एड्रेस. अगर आरटीटी मैच नहीं हो रहा है तो वो दूसरे सेकेंडरी इंटरफेस पे कनेक्ट करता है. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें मल्टी होमिंग में? नो सर. ओके, अब ये है एचटीटीपी के पैकेट. ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पैकेट ये टू मेन पार्ट होता है हर का. एक होता है हेडर और एक होता है पेलोड. ठीक है, हेडर इज कॉमन बट पेलोड हैज वेरिएबल चंक्स. ठीक है, so the common HTTP header is 12 byte long and made up of 4 parts में होता है. ठीक है, पोर्ट नंबर वो तो हम कल से देख रहे हैं यूडीपी और टीसीपी के भी केस में, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट. इसमें एक वेरिफिकेशन टैग होता है. ठीक है, एक 32 बिट रैंडम वैल्यू होता है इसमें which differentiates the packet from the previous connection. और चेकसम CR 32 बिट एल्गोरिथम फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर. कल हमने चेकसम के बारे में दिखाया था एक प्रोसेस कैसे चेकसम होता है. राइट, understanding central point of architecture support for HTTP. ठीक है, as we know that HTTP association is a connection between two HTTP endpoints. दो endpoint के बीच में इसका connection होता है. Each endpoint identifies its association with a tag. एक tag के through हर एक endpoint का identification होता है. During its setup, the HTTP endpoints exchange their tags for receiving packets. ठीक है, tag exchange करते हैं packet receive करने के बाद. So during the exchange of the packet between two HTTP endpoints, both source and destination address can change in association life cycle. ठीक है, application of HTTP protocol. इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज होता है. ठीक है, इट वाज डेवलप्ड फॉर द कम्युनिकेशन, सॉरी यहाँ पे फॉर होगा, द कम्युनिकेशन ऑफ टेलीफोन ओवर द इंटरनेट. Multi-homing support करता है. It provides multi-homing support in which both endpoints of the connection can have multiple IP addresses, which helps in detection of failure in between communication path. Multiple IP addresses होते हैं, अगर एक नहीं चल रहा है तो वो secondary IP address पे switch करता है. ठीक है, roaming security and RAN security. In mobile infrastructure, it is used in roaming security and radio access network security में use होता है. Reliable and secure transport है इसका. This protocol provides reliable and highly secure transport or communication which minimizes the end-to-end delay. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है HTTP के? एक तो फुल डुप्लेक्स कनेक्शन है. ठीक है, इट enables the data to be sent and received simultaneously, जैसे कि TCP भी होता है फुल डुप्लेक्स कनेक्शन. ठीक है, the data is delivered in chunks and in ordered way which are independent to each stream. This helps in isolating the data from other streams. Like TCP and unlike UDP, HTTP provides the following advantages. क्या है advantages इसके? फ्लो कंट्रोल होता है. It adjusts the data transmission in a particular order and quantity. जो फ्लो कंट्रोल के बारे में मैंने कल आपको अच्छे से बताया था. कंजेशन कंट्रोल भी करता है ये. It checks for a network prior transmission to prevent the congestion over links. Fault tolerance भी करता है. It uses IP addresses from different internet service providers. So if in case ISP fails, another connection can be used for establishing the connection. It is a message oriented rather than byte oriented as of UDP. ठीक है, it provides a path selection functionality to select the primary data transmission and a monitoring function to test the connectivity of transmission path. ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का एक आखिरी प्रोटोकॉल था. अब एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके प्रोटोकॉल्स में किसी को कोई भी डाउट है? हमने कल पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी हैं हमने. ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ा हमने कल,
टीसीपी पढ़ा, यूडीपी पढ़ा, और आज हमने एक छोटा सा उसका एक और प्रोटोकॉल था एचटीटीपी वो पढ़ा है। इन इस चारों में से किसी को कोई भी डाउट है तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, नहीं तो फिर हम लोग एक इंटरेस्टिंग लेयर एप्लीकेशन लेयर उसको पढ़ेंगे और उसके प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी? नो सर। ओके देन, फिर हम एप्लीकेशन लेयर पे चलते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर है जो सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल का, उसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इज टॉप लेयर इन दिस मॉडल एंड टेक्स केयर ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये जो टीम्स ऐप यूज कर रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन लेयर मेरे को हेल्प कर रहा है for this communication, because this Teams is an app. It has a different protocol on which it is working, and this application layer is helping me to access Teams, and then I'm teaching it to you. Okay, the application layer provides the functionality to send and receive data from users. ठीक है, मैं आपको डेटा सेंड कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। It acts as an interface between the user and application. ये मैं यूज कर रहा हूँ और मेरा Teams का ऐप है, ये एक तरह से इंटरफेस है, इसके पीछे एप्लीकेशन लेयर काम कर रहा है और उसके प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। The application provides services like फाइल ट्रांसमिशन में काम करता है, मेल सर्विस में काम करता है, और इसके बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, दिस लेयर प्रोवाइड्स सेवरल वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा which actually enables the type of user access network with ease. Okay, this layer also makes a request to its bottom layer, which is presentation layer, for receiving various type of information from it. जैसे कि हमको पता है सेंडर एंड और रिसीवर एंड से सारे लेयर्स एक दूसरे से बात करते हैं और हर लेयर का अपना अपना एक फंक्शनैलिटी है, तो एप्लीकेशन लेयर भी जस्ट अपने नीचे वाले लेयर से भी बात करता है जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है? ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो आई मूव ऑन। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? प्लेज अ की रोल इन मैनेजिंग एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मैनेज करने में काफी हेल्प करता है, जैसे ईमेल, फाइल ट्रांसफर और रिमोट लॉगिन। और एप्लीकेशन लेयर interface directly interacts with application to provide common web application services. This layer is basically the highest level of open system which provides services directly for application processes. ये है एप्लीकेशन लेयर, द फर्स्ट लेयर, और द लेयर 7 भी बोलते हैं इसको हम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू नेटवर्क, एंड ये ओएसआई मॉडल का है एप्लीकेशन लेयर। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो 7, 6 और 5 लेयर है, इसको हम टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन बोलते हैं, बीच में ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और नीचे वाले 3 लेयर को फिजिकल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी फंक्शंस क्या क्या है एप्लीकेशन लेयर के? तो इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी बाय व्हिच users can forward several emails, and it also provides a storage facility. ठीक है, emails जो भी आप यूज करते हो, आउटलुक, so that is working on an application layer protocol. This layer allows user to access, retrieve and manage files in a remote computer. ठीक है, आप VDI लॉगिन करके किसी रिमोट कंप्यूटर पे जाते हो, एक्सेस करते हो, वहाँ पे कोई फाइल देखते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। रिमोट होस्ट में लॉगिन के लिए भी एप्लीकेशन लेयर का यूज होता है। ठीक है, दिस लेयर प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सर्विसेज। ठीक है, दिस ग्लोबल इंफॉर्मेशन जैसे आप वेबसाइट ये सब ओपन करते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज इंक्लूड्स ईमेल, ट्रांसफरिंग फाइल्स, distributing results to users, directory services, network resources, and so on. And then it provides protocol that allows software to send and receive information and present meaningful data to users. ठीक है, it handles issues such as network transparency, resource allocation, and so on. And also this layer serves as windows for users and application processes to access network services. और क्या है इसके functions? The application layer is actually an abstraction layer that specifies the shared protocol and interface method used by host in communication network. ठीक है, एक abstraction layer की तरह काम करता है।
एप्लीकेशन लेयर हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर एंड सिंक्रोनाइजिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। द लेयर अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, से भी यूजर्स को इंटरैक्ट करने में ये लेयर हेल्प करता है। और क्या करता है इन दिस लेयर, डेटा इज इन विजुअल फॉर्म में डेटा होते हैं इसके, और which makes user truly understand data rather than remembering or visualizing the data in binary format, ठीक है। जैसे कि अभी इसका कहने का, इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि जीरो और वन बाइनरी फॉर्मेट में डेटा आप नहीं पढ़ सकते, जैसे हमने कल होला वाले केस में देखा था, ठीक है। तो वो डेटा को बाइनरी से नॉर्मल फॉर्मेट में करता है ताकि हम जो है इजीली रिमेम्बर कर सके। द एप्लीकेशन बेसिकली इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट करता है और फर्दर प्रिजर्व्स द डेटा इन अ सुटेबल मैनर, ठीक है। और क्या करता है, also receives and preserves data from its previous layer which is presentation layer, जैसा कि हमने देखा था ये प्रेजेंटेशन लेयर इसके जस्ट लेवल 6 वाला लेयर है, ठीक है। which carries in itself a syntax and semantics of the information transmitted, ठीक है। अब the protocol which are used in the application layer depends upon what information user wishes to send and receives, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो यूजर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि क्या कैसा इंफॉर्मेशन यूजर को सेंड करना है। अभी यूजर को फाइल सेंड करना है तो वो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज कर सकता है, यूजर को अगर वेब ब्राउजिंग करना है तो वो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज कर सकता है, ठीक है। अभी this application layer in general performs host initialization followed by a remote login to host, वो remote login के लिए भी काम करता है डिफरेंट होस्ट्स पे। काम कैसे करता है ये एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल में, इसमें किसी को कोई डाउट है फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर में, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आता तो लेट मी नो एंड आई विल एक्सप्लेन। गाइस किसी को भी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और आज भी काफी चीजें मैंने रिपीटेटिव रखी हैं स्लाइड्स में जस्ट टू बिल्ड योर मसल मेमोरी, ताकि आपको एक तरीके से याद हो जाए कि अच्छा एप्लीकेशन लेयर ये करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो करता था, ठीक है। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स रिपीटेटिंग, आई हैव पर्पसली डन इट so that you guys would try to gather a lot of things and remember a lot of things, ठीक है भाई। काम कैसे करता है ये एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर इन द OSI model generally acts only like the interface which is responsible for communicating with host based and user application, ठीक है। एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजुअली, ठीक है, एंड रिस्पांसिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद होस्ट बेस्ड एंड यूजर एप्लीकेशन, मतलब होस्ट और यूजर एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। दिस इन कॉन्ट्रास्ट विद TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है, where the layers below the application layer which is session layer and presentation layer are clubbed together to form a simple single layer which is responsible for performing the functions, which includes controlling the dialogues between computer, establishing as well as maintaining as well as ending of the particular system, providing data compression and data encryption and so on। तो मैंने जैसे बताया था आपको, ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को हम लोग एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, और ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं, एक कंजंक्शन में काम करते हैं। फिर बीच में एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जिसको कि हम लोग हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं, और ये जो तीनों लेयर है इसको हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, ओके, कि this in contrast with TCP/IP protocol wherein the layer below the application layer which is session layer and presentation layer are clubbed together to form a simple single layer which is responsible for performing the functions, ठीक है। क्या functions है, which includes controlling the dialogues between computers, ठीक है, establishing as well as maintaining as well as ending a particular session, ठीक है, session start करना, session end करना, ठीक है, providing data compression and data encryption and so on, ठीक है। उसके नीचे नीचे वाले layers में data compression data encryption भी होता है, presentation layer और session layer, ठीक है। वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे when we go about those layers, ठीक है। और कैसे काम करता है, at first client sends a command to a server and when server receives the command it allocates a port number to the client, ठीक है। ये हमने काफी लेंथ एंड ब्रेथ में कल देखा था। Thereafter the client sends an initiation connection request to the server and when server receives request it gives acknowledgement to client through client has successfully established a connection with the server, वही synchronization और acknowledgement वाला है ये केस। Therefore now client has access to server through which it may either ask server to send any type of files to or other documents or it may upload some files or documents on server itself, ठीक है। अभी फीचर्स प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स क्या क्या है,
So to ensure a smooth connection, application layer protocol are implemented the same on source host and destination host. ठीक है, दोनों साइड पे ये प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर मेरे साइड पे है, आपके साइड पे नहीं है, तो आप ये टीम्स एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों साइड पे ही, हर साइड पे, सोर्स साइड पे, डेस्टिनेशन साइड पे, दोनों साइड पे ये प्रोटोकॉल होस्टेड होते हैं, इंप्लीमेंटेड होते हैं। The following are some of the features which are provided by application layer protocols. क्या क्या फीचर्स हैं? तो the application layer protocol defines processes for both parties which are involved in the communication. ठीक है, दोनों पार्टीज को एक प्रोसेस डिफाइन करता है ये। These protocol define the type of messages being sent or received from any side. ठीक है, किस टाइप का मैसेज भेजना है। यहाँ पे मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को आप लोगों को मेल भेजना है, तो इट्स मी हु हैज टू डिसाइड कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। अभी आउटलुक पे मेल भेजना है तो मैं आउटलुक आपको मेल भेज सकता हूँ। सिंपली वीडियो कॉल करने, कट ऑफ करके मेरे को सिर्फ आपको एक टीम्स पे हाई बोलना, तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ फाइल भेजना है आपको, तो मैं आपको एक टीम्स पे फाइल भी भेज सकता हूँ, या फिर मैं आपको एक शेयर पॉइंट पे का एक्सेस देके वहां पे सारे फाइल स्टोर करके उसका एक्सेस दे सकता हूँ। तो ये बोला, मेरे को जो भी चीज करना है वो मैं वो सब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल से, जो कि हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो क्या भेजना है, क्या करना है, वो कौन सा प्रोटोकॉल करना है, वो यूजर ही आइडेंटिफाई करता है और एप्लीकेशन लेयर उसको हेल्प करता है। दिस प्रोटोकॉल आल्सो डिफाइन बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ मैसेज बीइंग फॉरवर्डेड और रिट्राइव्ड। ठीक है, दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस द वे टू सेंड द मैसेज एंड द एक्सपेक्टेड रिस्पांस। ठीक है, these protocols also define interaction with next level। ठीक है, और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर, ये हम लोग कब से सुन रहे हैं, ये 2-3 बार हो चुका है कि इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन, ये भी करता है। रिमोट लॉगिन के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, मेल सर्विसेज के लिए, मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के लिए भी काम करता है ये। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है सर्विसेज के बारे में, फंक्शनैलिटीज के बारे में एप्लीकेशन लेयर के? तो सर Cool, ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कि एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, और हम लोग एक एक प्रोटोकॉल को काफी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक जस्ट फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि इसके कौन से प्रोटोकॉल्स हैं इनिशियली और वो क्या क्या करते हैं। तो द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स सेवरल प्रोटोकॉल व्हिच अलाउज एनी सॉफ्टवेयर to easily send and receive information and present meaningful data to its users। ठीक है, the following are some of the application layer protocol। क्या क्या है प्रोटोकॉल्स? पहला प्रोटोकॉल है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अभी इस प्रोटोकॉल का क्या काम है? दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग फाइल्स ओवर इंटरनेट। ठीक है, इट अलाउज द टेलनेट क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द टेलनेट सर्वर, और ये इसका पोर्ट नंबर 23 है। ठीक है, ये ओनली सिर्फ फाइल को मैनेज करता है इंटरनेट पे। ठीक है, भी होता दूसरा है डीएनएस। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। जो डीएनएस सर्विस ट्रांसलेट द डोमेन नेम selected by user into the corresponding IP addresses। For example, if you choose a domain name www.abcd.com, then DNS must translate it as 192.36.20.8। ठीक है, डीएनएस प्रोटोकॉल यूज पोर्ट नंबर। डीएनएस का मेन यही काम है कि अभी कुछ भी आप वेब ब्राउजिंग में करते हो, अभी गूगल ही खोल दो www.google.com, वो google.com आप क्यों खोल पा रहे हो? क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप गूगल के जो ये आईपी है उसको एक्सेस कर रहे हो। तो रादर देन प्रोवाइडिंग द आईपी एड्रेस, आपको याद करना ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर इजी है, या फिर आपको google.com याद करना ज्यादा इजी है? ऑफ कोर्स सिर्फ google.com याद करना ज्यादा इजी है। उसके पीछे क्या होता है कि वो एक आईपी ही है, जो कि एक आईपी एड्रेस है जिसको कि आप एक्सेस कर रहे हो। तो रादर देन कि आपको आईपी याद करना पड़ेगा एक चीज का, डीएनएस क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है। अभी ये मान लो सपोज 192.36.20.8 गूगल का है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको ये याद करने की वजह से करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको ट्रांसलेट करके वो www.google.com कर दिया। ठीक है, तो ये डीएनएस का मेन काम है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है डीएचसीपी, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो डीएचसीपी क्या करता है? एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स आईपीए
होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। whenever a host tries to register an IP address with DHCP server, DHCP server provides lots of information to the corresponding host, ठीक है। और DHCP uses port number 67 and 68, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है टेलनेट, DNS, DHCP के बारे में? चलो, आई होप किसी को डाउट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। आगे है FTP। वही FTP होता है एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है? ये ट्रांसफर, दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स टू ट्रांसफर डिफरेंट फाइल्स फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर, ठीक है। फाइल ट्रांसफर में यूज होता है एक डिवाइस से अदर डिवाइस करने में, ठीक है। FTP प्रमोट शेयरिंग फाइल via remote computer devices with reliable efficient data transfer, ठीक है। शेयरिंग रिमोट कंप्यूटर्स पे भी फाइल एक रिलायबल और इफिशिएंट वे में ट्रांसफर करता है ये प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर क्या है? 20 फॉर डेटा एक्सेस एंड 21 फॉर डेटा कंट्रोल, ठीक है। फिर आता है SMTP। इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये it is used to transfer electronic mail from one user to another user. SMTP is used by end user to send emails with ease. SMTP uses port number 25 and 587. SMTP का बेस्ट एग्जांपल है आउटलुक, जो कि आप मेल भेजते हो वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है, जो कि एक एप्लीकेशन लेयर का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। अभी एक और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इट इज अ फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी आप ब्राउज करते हो वो HTTP प्रोटोकॉल पे चलता है, ठीक है। HTTP works on a client server model, ठीक है। This protocol is used for transmitting hypermedia documents like HTML. This protocol was designed particularly for communication between the web browser and web servers, ठीक है। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। बट दिस प्रोटोकॉल कैन आल्सो बी यूज्ड for several other purposes, ठीक है। HTTP is a stateless protocol, network protocol in which a client sends request to server and a server respond back as per the given state, ठीक है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ और तो इजीली खुल जाता है। अगर वो सर्वर बिजी है तो अपने को आता है कि कैन नॉट एक्सेस, सर्वर बिजी, या फिर 404 एरर ऐसा करके आता है। तो वो कहने का मतलब वही है कि सर्वर का जो भी अपरेंटली जो भी स्टेट है, अगर वो एक्सेसिबल है तो आपको वो वेबसाइट एक्सेस होगी। अगर एक्सेसिबल नहीं है तो जो भी सर्वर का स्टेट है उसका आपको अपडेट आएगा, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर 80 है। इस तीनों प्रोटोकॉल में किसी को कोई डाउट है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में? नो सर। और ये एक एक प्रोटोकॉल हम आगे के क्लासेस में काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और क्या प्रोटोकॉल है इसका एप्लीकेशन लेयर का? एक इसका प्रोटोकॉल है NFS, जो कि नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। दिस प्रोटोकॉल अलाउ रिमोट होस्ट टू माउंट फाइल्स ओवर अ नेटवर्क एंड इंटरैक्ट विद दोस फाइल एज दो दे आर माउंटेड लोकली। NFS यूज पोर्ट नंबर 2049। NFS का एग्जांपल आप समझ लो कि अभी हमारा ही ये है, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को, इसको कहीं एक क्लाउड पे इसको कहीं मैंने इसको सेव कर दिया है और आप लोगों को एक्सेस दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग वो फाइल्स जाके इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। SNMP क्या होता है? SNMP स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेज डिवाइसेस ऑन IP नेटवर्क एंड फॉर मॉडिफाइंग दैट इंफॉर्मेशन टू चेंज डिवाइस बिहेवियर, ठीक है। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, जो भी मैनेज डिवाइसेस हैं IP नेटवर्क, उसको कलेक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मैनेज करता है उसको, और इंफॉर्मेशन कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी कर सकता है। और ये TCP के लिए 161 पोर्ट यूज करता है और UDP के लिए 162 पोर्ट यूज करता है, ठीक है। तो ये थे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स और कैसे एप्लीकेशन लेयर काम करता है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे DHCP, बट आई गेस लेट्स टेक 5 minutes break and then I'll come back, okay? ठीक है, उसके बाद हम DHCP पढ़ेंगे डिटेल्स में, चलेगा? यस सर। ओके, सो लेट्स मीट एट 10:10, ओके?
Okay, hope I am audible. Are you guys back? Yes, sir. Okay, चलो फिर स्टार्ट करते हैं DHCP से, ठीक है। तो DHCP एक एप्लीकेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है और इसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो क्या है ये? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल used to automate the process of assigning IP addresses and other network configuration parameters to devices such as computers, smartphones and printers on a network. ठीक है, क्या है ये? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है used to automate the process of assigning IP, ठीक है, addresses and other network configuration parameters to devices such as computer, smartphone and printers on a network. IP address assign करता है ये, ठीक है। Instead of manually configuring each device with the IP address, DHCP allow devices to connect to a network and receive all necessary network information. ठीक है, भी मैनुअली कॉन्फ़िगर करने से अच्छा है क्या करता है ये, डिवाइसेस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है और वहां से वो डिवाइसेस सारे इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, लाइक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर एड्रेसेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम DHCP सर्वर से ये सारे इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकते हैं। तो क्या होता है इससे कि दिस मेक्स इट इजियर टू मैनेज एंड मेंटेन लार्ज नेटवर्क्स, ensuring devices can communicate effectively without conflicts in the network settings. Or DHCP plays a crucial role in modern network by simplifying the process of connecting devices and managing network resource efficiently. ठीक है, किसी को इस स्लाइड में कोई भी डाउट है कि DHCP क्या करता है और क्या काम है उसका? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है? No, sir. ठीक है। DHCP is based on a client server model, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है जिसमें कि डिस्कवरी होता है, ऑफर होता है, रिक्वेस्ट होता है और एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है। ये हम भी पढ़ेंगे डिटेल में आगे कि कैसे होता है और क्या होता है। DHCP सिंप्लीफाइज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बाय डायनामिकली असाइनिंग IP एड्रेसेस, ठीक है। अभी और क्या करता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू यू यूज DHCP? तो DHCP हेल्प्स इन मैनेजिंग द एंटायर प्रोसेस ऑटोमेटिकली एंड सेंट्रली, ये सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली और एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू मैनेज करता है। DHCP helps in maintaining a unique IP addresses for a host using a server, भी हर चीज का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है, तो उसी को वो मेंटेन करता है। अभी कोई भी एक वेबसाइट है तो उसका एक यूनिक IP एड्रेस है, ठीक है, तो उस वेबसाइट का जो IP एड्रेस है वो किसी और वेबसाइट का नहीं हो सकता है, बिकॉज वो DNS जो मैंने थोड़े पहले पढ़ाया था ये भी उसको कन्वर्ट करता है IP एड्रेसेस को अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो वो अभी google.com टाइप करेंगे तो गूगल ही खुलेगा, ऐसा नहीं कि google.com टाइप किया तो अमेजोन खुल गया, क्योंकि उनका अमेजोन का एक अलग IP एड्रेस है और गूगल का एक अलग, जो कि सारे IP एड्रेसेस यूनिक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ DHCP. The DHCP server maintains information on TCP IP configuration and provides configuration of addresses to DHCP enable clients in form of a lease offer. Lease भी ऑफर करता है ये IP एड्रेसेस को, अगर कोई IP एड्रेस खाली है अगर किसी को चाहिए तो वो उसको इतने टाइम के लिए दे सकता है कि हाँ ये IP एड्रेस यू कैन यूज इट फॉर दिस टाइम पीरियड, ओके। अभी कंपोनेंट्स क्या क्या है DHCP के, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है DHCP सर्वर। तो ये सर्वर क्या करता है, IP एड्रेसेस को होल्ड करता है और उनके कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, ठीक है। तो DHCP सर्वर इज अ सर्वर दैट होल्ड्स IP एड्रेसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर आता है DHCP क्लाइंट। DHCP client is a device that receives information, configuration information from the server, ठीक है। configuration information server से receive करता है। It can be mobile, laptop, computer or any other electronic devices that requires a connection, ठीक है। फिर आता है DHCP relay। तो DHCP relays basically works as a communication channel between DHCP client and server. क्या उसके बाद हाँ सॉरी, DHCP relays क्या करता है, एक कम्युनिकेशन चैनल है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। IP address pool है, it is a pool or a container of IP addresses. This is processed by DHCP server, ठीक है। It has a range of addresses that can be allocated to devices. एक address pool मतलब आप समझ लो कि एक कंटेनर है जहाँ पे सारे IP addresses होते हैं DHCP सर्वर पे, और किस डिवाइस को कौन सा एलोकेट करना है IP एड्रेस यहाँ पे होता है। सबनेट्स
सबनेट्स क्या होते हैं? देयर इज स्मॉलर पोर्शन ऑफ आईपी नेटवर्क पार्टीशन टू कीप नेटवर्क्स अंडर कंट्रोल, ठीक है। आईपी नेटवर्क के स्मॉल पोर्शन है। लीज क्या होता है? इट इज सिंपल टाइम टू हाउ लॉन्ग द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सर्वर इज वैलिड। इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ लीज द टेनेंट मस्ट हैव टू रीअसाइन द लीज, ठीक है। वही है कि लीज करते हैं आईपी और खत्म होने के बाद उसको रीअसाइन करना होता है। अभी डीएनएस सर्वर, तो ये डीएनएस सर्वर वही है, डोमेन नेम सर्वर, जो मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेसेस को एक नॉर्मल फॉर्मेट देता है वो, ताकि इजीली रिमेंबर कर सके। तो डीएचसीपी सर्वर कैन आल्सो प्रोवाइड डोमेन नेम सिस्टम सर्वर इंफॉर्मेशन ऑन डीसीपी क्लाइंट अलाउइंग देम टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। एक डिफॉल्ट गेटवे भी है कंपोनेंट डीएचसीपी का। तो ये क्या करता है? सर्वर कैन आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट गेटवे व्हिच is the device that packet are sent to when the destination is outside a local network, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट गेटवे है जिसका कि जो कि पैकेट when the packets are sent when the destination is अभी लोकल नेटवर्क के आउटसाइड जो डेस्टिनेशन है तो उनके लिए एक डिफॉल्ट गेटवे होता है। ऑप्शंस भी एक है उसमें। और DHCP सर्वर कैन प्रोवाइड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस टू क्लाइंट्स सच एज सबनेट मास्क, डोमेन नेम, टाइम सर्वर इंफॉर्मेशन। Renewal. DHCP clients can request to renew their lease before it expires to ensure that they continue to have valid IP addresses and configuration information, ठीक है। और भी कंपोनेंट्स है DHCP के। फेल ओवर होता है, तो DHCP सर्वर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर फेल ओवर। अगर कुछ फेल ओवर होगा उसके लिए भी DHCP के पास एक कंपोनेंट है। When two servers work together to provide redundancy and ensure the client can always obtain the IP address and configuration information even if one server goes down, ठीक है। Dynamic updates. DHCP server can also be configured to dynamically update DNS records with the IP addresses of DHCP clients, allowing for easier management of network resources, ठीक है। Audit login. DHCP server can keep audit logs को audit करता है और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं DHCP के थ्रू, and providing administrator with visibility into which device are using which IP addresses and when leases are being assigned and renewed, ठीक है। तो लॉग ऑडिट करता है, देखता है कि इनका जो आईपी एड्रेस का लाइसेंस है वो भी खत्म होने के बाद उसको रिन्यू कराने के लिए ऑडिटर को वो बताता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है कंपोनेंट्स ऑफ डीएचसीपी इस स्लाइड पे? नो सर। ओके, ये है डीएचसीपी का पैकेट फॉर्मेट। इसमें है कोड्स, हार्डवेयर टाइप्स, हॉप्स, सेकेंड्स, फ्लैग्स, क्लाइंट आईपी, लोकल आईपी, सर्वर आईपी एड्रेस, डिले एजेंट, क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस होते हैं इसमें, सर्वर होस्ट नेम, बूट फाइल नेम और ऑप्शंस, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या कौन सी चीज क्या क्या करता है। तो एक हार्डवेयर लेंथ है, तो ये क्या होता है? एक 8 बिट फील्ड है जिसमें कि डिफाइन द लेंथ ऑफ फिजिकल एड्रेसेस इन बाइट्स, फॉर एग्जांपल इथरनेट। तो ये एक फिजिकल एड्रेस का लेंथ ये है, एक तरीके का है ये, और इसका 8 बिट का फील्ड होता है। फिर एक हॉप काउंट आता है। हॉप काउंट क्या करता है? ये भी एक 8 बिट फील्ड है। डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स द पैकेट कैन ट्रैवल। एक पैकेट कितना नंबर ऑफ हॉप्स ट्रैवल करता है उसका ये काउंट बताता है। ट्रांजैक्शन आईडी है 4 बिट फील्ड कैरिंग एन इंटीजर। द ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन इज सेट बाय द क्लाइंट। ये क्लाइंट के थ्रू सेट होता है एंड इज यूज्ड टू मैच अ रिप्लाई विद द रिक्वेस्ट, ठीक है। द सर्वर रिटर्न्स द सेम वैल्यू इन इट्स रिप्लाई। नंबर ऑफ सेकंड्स, ये एक 16 बिट फील्ड है that indicates the number of second elapsed since the time the client started to boot, ठीक है। उसके बाद एक फ्लैग है, दिस इज 16 बिट, ये 16 बिट का फील्ड है in which only the leftmost bit is used and the rest of bits should be set to 0, ठीक है। जो सबसे leftmost bit है 16 बिट का सिर्फ वही यूज होता है और बाकी सारे बिट 0 पे सेट होते हैं इसके। The leftmost bit specifies a forced broadcast reply from the server, ठीक है। The leftmost bit क्या करता है? स्पेसिफाई करता है forced broadcast का सर्वर पे। If the reply were to be unicast to a client, the destination IP address of the IP packet is the address assigned to the client, ठीक है। फिर आता है क्लाइंट आईपी एड्रेस। ये क्या होता है? एक 4 बिट फील्ड होता है जिसमें कि क्लाइंट आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं। इफ द क्लाइंट डज नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन, क्लाइंट के पास अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो वो फील्ड 0 सेट होता है।
लोकल आईपी एड्रेस क्या है, ये तुम्हारा लोकल आईपी एड्रेस है। सर्वर आईपी एड्रेस, this is a 4-bit field containing server IP address. It is filled by the server in the reply message, ठीक है। फिर एक कोई गेटवे आईपी एड्रेस होता है उसके कंपोनेंट में, पैकेट में। ये क्या करता है, ये भी एक 4-बिट का फील्ड है जिस कंटेन्स आईपी एड्रेस ऑफ राउटर का आईपी एड्रेस, राउटर के आईपी एड्रेस को ये स्टोर करता है। फिर आता है एक क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस। ये क्या करता है, एक फिजिकल एड्रेस, क्लाइंट का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। Also, the server can retrieve this address from the frame sent by the client. It is more efficient if the address is supplied explicitly by the client in the request messages, ठीक है। फिर एक सर्वर नेम है, it is a 64-bit field that is optionally filled by the server in the reply packet. It contains null terminated string consisting of domain name of the server. इसमें सर्वर के डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। और if the server does not want to fill the field of data, then the server must fill it with zeros, ठीक है। अगर उसमें एक सर्वर को डेटा नहीं देना चाहता है, तो उस फील्ड को फिल नहीं करना चाहता, तो वो सारे फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो पर सेट होते हैं। फिर एक है बूट फाइल नेम, क्या है ये, एक 28-बिट बाइट फील्ड है दैट कैन ऑप्शनली फिल्ड बाय द सर्वर इन अ रिप्लाई पैकेट। सर्वर से जो रिप्लाई पैकेट आता है उसमें ये फिल होता है। इट कंटेन्स नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ फुल पाथ नेम ऑफ द बूट फाइल, ठीक है। द क्लाइंट कैन यूज दिस पाथ टू रिट्रीव अदर बूटिंग इंफॉर्मेशन। If the server does not want to fill this field, the server must be filled with zeros, ठीक है। सेम एज सर्वर नेम वाली फील्ड में भी फिर एक ऑप्शंस का ऑप्शन है इसमें, जो कि क्या है, 64 बाइट फील्ड है। इसका दो पर्पस है, डुअल पर्पस है इसका। इट कैन कैरी either additional information और some specific vendor information। या तो ये कुछ additional information यूज करेगा और या फिर कुछ स्पेसिफिक वेंडर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। The field is used only in a reply message. सिर्फ reply message में options का use होता है। The server uses a number called a magic cookie in the format of IP address with the value of this. And when the client finishes recording the message, it looks for the magic cookie. If presents, the next 60 byte are options, ठीक है। अभी DHCP काम कैसे करता है, तो ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। A client device or a DHCP client such as a laptop, एक कोई भी डिवाइस है, एक लैपटॉप है सपोज, तो एक नेटवर्क को ज्वाइन करता है। तो क्या करता है, ज्वाइन करने का मतलब है कि एक आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट करता है, और वो जो रिक्वेस्ट है वो डीएचसीपी सर्वर को जाता है। अभी क्या होता है, सर्वर्स क्या करेंगे, these servers are often configured with redundancy, often called DHCP failover or clustering among other network server. Server can run on both IPv6 और IPv4 नेटवर्क पे ये काम करता है। तो सर ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर आप जो रिक्वेस्ट गया है, तो वो रिक्वेस्ट हमेशा ही फुलफिल होगा। इधर आपको वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे या तो फिर कुछ एरर मैसेज आएगा, बट ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन ब्लैंक रहेगी। और ठीक है, the server will quickly and automatically assign an IP address and some related network configuration parameters, ठीक है। Once the device has accepted the assignment, it can communicate with both internal network and public internet depending upon user's need. So this is how it works. अभी ये रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस को किया, ये डीएचसीपी सर्वर है और ये उनके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं। इसमें डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क और डीएनएस सर्वर्स हैं। अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। तो डीएचसीपी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, तो कम्युनिकेशंस टू फुलफिल अ डीएचसीपी रिक्वेस्ट इन्वॉल्व बोथ द सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। वो सर्वर और क्लाइंट दोनों का जरूरत होता है कम्युनिकेशन फुलफिल करने में डीएचसीपी रिक्वेस्ट का जो भी इनिशिएशन है। Furthermore, a relay agent or IP helper often facilitates communication between the two, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि इनके बीच में जो भी है एक्सेस, इसके लिए रिले एजेंट होता है इनके कम्युनिकेशन में। Relay agent receive broadcast DHCP message from clients and then resend those messages with configuration information to the server. अभी जो भी configuration information है वो भेजते हैं ये सर्वर को, यहाँ से DHCP सर्वर को, ठीक है। Communication happens via small units of data called packets and then are routed through a network. Networking protocols like IP govern all its rules. तो IP के बारे में हम कल काफी पढ़ चुके हैं। तो वो डेटा पैकेट्स में जाता है, एज हमने कल ही देखा था।
और ये है DHCP के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कैसे काम करता है, पहले क्लाइंट और ये DHCP सर्वर है, तो DHCP सर्वर पहले क्या करेगा, क्लाइंट एक डिस्कवर करता है, डिस्कवर के बाद एक DHCP सर्वर इनको ऑफर करेगा आईपी, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ भाई ये चाहिए मेरे को, और फिर इधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा कि ओके योर रिक्वेस्ट इज बीन एक्नॉलेज्ड। तो हम देखेंगे क्या कैसे होता है। तो most of the time communication occurs in 4 step briefly there. A discovery packet is sent from client to server. Discovery packet sent करता है client server को। उसके बाद क्या होता है, server replies to the client with a DHCP offer packet containing an IP address। ठीक है, इसमें IP address इसने DHCP server ने client को offer किया है। The client receives and validates the offer and sends a request packet back to server to accept the address। ठीक है, अब ये जो IP address DHCP server ने client को offer किया है, इसने क्लाइंट ने वैलिडेट किया है और बोलता है कि यस आई एक्सेप्ट द एड्रेस, तो सर्वर देन सेंड्स एक्नॉलेजमेंट पैकेट बैक टू द क्लाइंट टू कंफर्म द चोजन आईपी एड्रेस। तो ये वापस से बोलता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस एक्नॉलेज हो गया, आप यूज कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है ये 4 स्टेप DHCP कम्युनिकेशन में, एनी डाउट्स? सर यस हाँ सर, DHCP भी मतलब एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है ना? यस, ये एप्लीकेशन लेयर का ही प्रोटोकॉल है DHCP। तो सर मतलब इसको ऐसे मतलब आईपी जो आईपी असाइन करता है तो फिर उसके लिए मतलब ऐसा मतलब जो डिवाइस तक पहुंचने के लिए फिर हेडर्स वगैरह का कैसा है फिर? नहीं, तो ये DHCP प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अभी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी रिक्वेस्ट हो रहा है, तो वो वो जो OSI मॉडल के जितने प्रोटोकॉल से वो सारे भी इन्वॉल्व होंगे ना। बट ये एक DHCP प्रोटोकॉल इज लाइक कि तुमको इसका मेन काम है आईपी असाइन करना, ठीक है। तो ये जो चार तुम देख रहे हो, तो ये कैसे आईपी असाइन करता है वो बताया गया है इसमें, ठीक है। और इसका जो पैकेट्स है वो मैंने पीछे में दिखाया था कि वो इतने सारे पैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बट दिस इज व्हाट हाउ द इनिशियल हैंडशेक हैपेंस DHCP के केस में, ठीक है। DHCP का यस सर, काम ही है ऐसे। आईपी को असाइन करना। तो ये कैसे असाइन कर रहा है वो ये बताया गया है कि एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट पहले क्या कर रहा है, डिस्कवरी पैकेट इज सेंट फ्रॉम क्लाइंट। तो पहले इनिशियल रिक्वेस्ट क्लाइंट ने किया कि भैया मेरे को चाहिए आईपी। तो फिर क्या कर रहा है, ये सर्वर रिप्लाइज करता है क्लाइंट को कि ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे, इसने आईपी मांगा, तो इसने बोला कि ये है मेरे पास आईपी, तुमको अगर ये चाहिए, इफ यू नीड दैट आईपी एड्रेस यू रिव्यू इट। तो ये अभी रिव्यू कर रहा है, तो फिर रिव्यू करने के बाद इसने फिर ये वाला रिक्वेस्ट भेजी कि हाँ आई हैव रिव्यूड दिस एंड आई नीड दिस आईपी एड्रेस। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, आई एक्नॉलेज योर रिक्वेस्ट एंड नाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर आईपी, ठीक है। सर यू गॉट इट? या सर पर आईपी है ही नहीं तो फिर राउटिंग कैसे किया? मतलब आईपी है जो सर्वर और क्लाइंट में कम्युनिकेशन कैसे हुआ मतलब? जो फर्स्ट कम्युनिकेशन है वो तो अभी तुम नया भी लैपटॉप तुम्हारे पास लोकली स्टोर जो आईपी एड्रेस है ना तुम्हारे पास, जो लोकल आईपी एड्रेस है तुम्हारे पास, तुम्हारे कोई भी नया तुम लैपटॉप लेते हो तो उसमें तुम्हारा एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। उसी के थ्रू जो तुम कुछ भी, अभी जैसे तुम नया लैपटॉप खोले हो, तुमको सेटअप किया तुमने, तो तुम जो पहला ब्राउजर खोलते हो, तो वो कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, क्योंकि तुम्हारे पास लोकली स्टोर्ड एक आईपी एड्रेस है। और फिर तुमको कुछ अगर नया आईपी एड्रेस चाहिए उसके लिए है। इट्स नॉट कि it is like you are requesting an IP address to do something, right? It's not कि you अभी ये वो तुमको IP एड्रेस असाइन कर रहा है, अभी तुमको google.com खोलना है, राइट? तो उसका IP पता है इसको, DNS सर्वर को, DHCP सर्वर को, ठीक है। तुम जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो बता रहा है कि अच्छा ये तुमको, अब गूगल का एक ही आईपी नहीं है ना, उसके मल्टीपल आईपी, क्योंकि बहुत लोग पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एक साथ गूगल को ये कर रहे हैं, तो उनका एक अलग पूल बना हुआ है आईपी एड्रेसेस का। तो तुम्हारा जो लोकल आईपी सोर्स आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस है, वो उस वो बोला कि भैया मेरे को 192 और ये गूगल आईपी मेरे को चाहिए। तो ये DHCP सर्वर देखा, बोला अच्छा ये तुमको चाहिए तो ये अवेलेबल है, तुमको यही चाहिए, बोला, तुम बोले कि हाँ google.com चाहिए, फिर वो एक्नॉलेज करके तुमको दे दिया, फिर तुम्हारा google.com वो वाला पेज खुल गया। तो इट्स लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक यू आर टोटल यू आर गेटिंग टू असाइन अ न्यू आईपी। अगर न्यू आईपी एड्रेस तुमको चाहिए होता तो उसके लिए भी तुम कर सकते हो, बट फॉर दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। अभी तुमको नया अगर आईपी चाहिए होगा तो फिर भी ये सेम ही प्रोटोकॉल काम करेगा जो गूगल के लिए काम किया है, बट देन उस आईपी को तुमको क्या यूज करना है उसके लिए तुमको वो सब डिटेल बता रहा होगा कि हाँ भाई ये आईपी मेरे को यूज करना है, आई नीड दिस आईपी फॉर पब्लिक और प्राइवेट जो भी है,
तो उसके लिए भी सेम ही प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और यस वो सर, तुमको यस सर। कितने दिन के लिए वो आईपी चाहिए तो वो भी तुमको बताना पड़ेगा, बट दैट इज ऑल पेड। ठीक है, और प्राइवेट चाहिए पब्लिक चाहिए तो उनके आईपीस के डिफरेंट डिफरेंट कैसे आईपीस का स्टार्ट होता है, तो वो उससे पता चलता है कि ये पब्लिक आईपी ये प्राइवेट आईपी है और कितने दिन के लिए यूज करना है तुमको, तो वो तुमको आईपी आईपी भी ऐसा ही ऑफर करेंगे। ये आईपी है, ये अवेलेबल है, ये यूज करना है, आपको बोले ठीक है भैया मेरे को ये यूज करना है तो ये दे विल गिव इट टू यू। परमानेंटली चाहिए तो भी और लीज भी चाहिए तो भी, बट दिस इज हाउ बेसिकली लेमन टर्म्स में ये कैसे काम करता है ये बताया गया है। ठीक है, यस सर। चलो फिर तो सर्वर ये तो हमने कर लिया है। अभी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस क्या है डीएचसीपी के, तो डीएचसीपी के पास भी एक लिमिटेड आईपी एड्रेसेस का ही पूल है, तो टीसीपी सर्वर कैन ओनली ऑफर अ set number of IP addresses. This means attacker could flood the server with this request, causing essential devices to lose their connection. ठीक है, उसके बाद है फेक DHCP servers. Attackers might set up fake DHCP servers to give out fake IP addresses to devices on a network. ये भी कर सकते हैं attackers. DNS access. So when users get an IP address from DHCP, they also get DNS server details. ठीक है, डोमेन नेम सर्वर की डिटेल मिलते हैं। ठीक है, this could potentially allow them to access more data than they should. It's important to restrict network access, use firewall and secure connection with VPNs to protect against this. ठीक है, ये तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर एडवांटेजेस क्या क्या है डीएचसीपी के, तो डीएचसीपी एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है आईपी एड्रेसेस के लिए, सेंट्रलाइज एंड ऑटोमेट करता है ये टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, ईज ऑफ एडिंग न्यू क्लाइंट्स टू नेटवर्क। ठीक है, यूज ऑफ आईपी एड्रेसेस रिड्यूसेस टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं तो यूज कर सकते हैं। द एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस चेंजेस फॉर क्लाइंट दैट मस्ट बी अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, such as those for portable devices that move to a different location on a wireless network. ठीक है, simple reconfiguration of the IP addresses spaces on the DHCP server without needing to reconfigure each client. each हर client को configuration की वजह से क्या है, सिंपल रिकॉन्फ़िगरेशन होता है आईपी एड्रेसेस स्पेस में से स्पेस सर्वर पे, तो हर बार हर किसी चीज को रिकॉन्फ़िगर करने का जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एंड यू कैन यूज दैट। The DHCP protocol gives the network administration a method to configure the network from centralized area. ठीक है, अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को एक DHCP सर्वर पे जाके वो हर कुछ कर सकता है, हर कुछ एक वो सेंट्रल रिपोजिटरी है तो वहां वो जाके अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर सकता है। With the help of DHCP, easy handling of new users and reuse of IP addresses can be achieved. अभी एक IP एड्रेस लीज पे दिया, अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं उस IP एड्रेस को। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है DHCP के, कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो सकता है कभी कभी। ठीक है, बट दिस इज वेरी रेयर, बट इट्स जस्ट केस की एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट का भी एक इशू हो सकता है। द प्रॉब्लम विद DHCP is that client accepts any servers. Accordingly, when another server is in vicinity, the client may connect with this server and this server may possibly send invalid data to client. ठीक है, क्लाइंट जो है वो कोई भी सर्वर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली में कोई भी अदर सर्वर विसिनिटी में है क्लाइंट के तो वो उस दूसरे सर्वर से भी कनेक्ट कर सकता है, और हो सकता है कि वो सर्वर ब्रीच्ड हो और द सर्वर कुछ इनवैलिड डेटा क्लाइंट को बता सके। द क्लाइंट इज नॉट एबल टू एक्सेस द नेटवर्क इन एब्सेंस ऑफ DHCP सर्वर, तो बिना DHCP सर्वर के क्लाइंट नहीं एक्सेस कर सकता है DHCP सर्वर को। and the name of the machine will not be changed in case when a new IP address is assigned. ठीक है, मशीन का नेम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकली स्टोर्ड है, तो जब भी नया IP एड्रेस असाइन होगा तो ठीक है, मशीन का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास आज के लिए तो इतना ही था क्योंकि I thought there would be a lot of topics for you guys to understand, so I only prepared application layer and DHCP, and the other one was this SCTP. So अभी इस चारों में किसी को कोई डाउट है क्या, इस चारों में और एप्लीकेशन लेयर में? बिकॉज अभी सर we'll अभी या टेल मी।
हाँ सर, अभी मतलब मोस्टली एससीटीपी यूज होता है क्या? सॉरी, मतलब अभी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में एससीटीपी यूज होता है क्या इंस्टेड ऑफ रियल टीसीपी? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा टीसीपी यूज करते हैं। एससीटीपी मोस्टली यूज करते हैं जब वॉइस कॉल के लिए, ठीक है, ओवर इंटरनेट। जैसे पहले स्काइप था, स्काइप पे वॉइस कॉल आप करते हो, व्हाट्सएप मैसेंजर से, व्हाट्सएप से आप भी कॉल करते हो इंटरनेट पे, राइट? तो उसके लिए एससीटीपी यूज होता है। बाकी सारे में तो टीसीपी ही यूज करते हैं। अगर आपको रिलायबल डेटा ट्रांसफर चाहिए, मेल भेज रहे हो आप, उसके लिए आपको टीसीपी चाहिए होता है। यूडीपी आप मेनली यूज करते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जहाँ पे कि आपको तेजी में डेटा भेजना है, बट रिलायबल नहीं है। जैसे कि आप कोई भी वीडियोस देखते हो ऑनलाइन, उसमें कुछ कभी कभी बफर होता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बट आप कोई अगर मेल भेज रहे हो तो वो रिलायबल होना चाहिए, और वो होना चाहिए कि जो भी आप भेजो वो पहुंचे। तो इसलिए रिलायबिलिटी के लिए वी यूज टीसीपी, बट इट्स अ बिट स्लो। यूडीपी इज फॉर फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग के लिए। और एचटीटीपी का बेस सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वॉइस कॉल के लिए इंटरनेट पे, ठीक है। यस सर। हम्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई मेक श्योर कि मैं और भी टॉपिक लेके आऊँ, बिकॉज मेरे को लगा था कि काफी टाइम हो जाएगा ये इसको और एप्लीकेशन लेयर के लिए। तो आज हम ये क्लास को अर्ली क्लोज करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई हैव मोर स्लाइड्स एज वेल, ओके। यस सर। और ओके भी सर। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है? मैं अवेलेबल रहता हूँ, वो जो ग्रुप है। तो इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, एंड देन आई क्लियर योर डाउट्स, ओके। यस ओके सर। सर। कभी भी कोई भी डाउट हो, बट रात में मत पूछना, दिन में पूछ सकते हो, यस सर। ठीक है? माय नंबर इज सेव्ड, और या तो फिर प्रियांशु से मेरा नंबर आप लोग ले सकते हो। मेरा नाम सुमित है, मेरा नाम यश नहीं है। यश इज ओनली, बट मैं यस। उसके इससे पढ़ा रहा हूँ आपको, बिकॉज ही इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड द कॉल्स, ठीक है। यस सर। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है और क्या करना है, तो आप कंसल्ट करो मेरे को, एंड आई हेल्प यू आउट कि कहाँ से आप सर कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। सर अगर पीपीटी होगी तो शेयर करो ना सर। हाँ श्योर श्योर, वो मैं शेयर कर दूंगा आप पीपीटीज, आप ओके पीपीटीज। सर। और मैं अभी ये, जैसे कि अभी एप्लीकेशन लेयर का ये पीपीटी, इसमें आगे भी ये भी ऐड होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बचे हैं, तो मैं सारे प्रोटोकॉल्स को ऐड करूंगा, और मैं आपको अच्छे अच्छे स्टडीज के लिंक भी दे दूंगा उसमें, जहाँ से कि आप जाके उस लिंक को क्लिक करके, मोस्टली वीडियोस की लिंक दूंगा, ताकि आप वीडियोस देखोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता यस है। सर। क्योंकि मैं अभी ये थ्योरी बेस्ड है, मेरे को पता है थोड़ा बोरिंग रहता है थ्योरी बेस्ड क्लासेस। तो अभी और मैं इसमें अभी प्रैक्टिकल दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर दीज काइंड ऑफ सिनेरियोस, ठीक है। क्योंकि अभी लेयर वाइज दिखाना इट्स अ बिट ट्रिकी। तो आई ट्राई, बिकॉज प्रैक्टिकल आपको मोस्टली यश दिखाएगा जब वो आएगा, तो क्योंकि एंड आई हैव टू कवर द थ्योरी पार्ट, आई नो थ्योरी इज अ बिट बोरिंग, क्योंकि मेरे को भी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में ही मजा आता है। बट ठीक है, आई विल शेयर दिस पीपीटी, बट लेट मी कंप्लीट दिस पीपीटी विद ऑल द डिटेल्स, ताकि आपको सारे उसमें मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां से जाके एक एक चीज के बारे में आप वहां से सर्च कर, लिंक पे क्लिक करोगे तो यू कैन गो हेड एंड फाइंड एवरीथिंग, द वीडियोस एंड ऑडियोज, एवरीथिंग और डिटेल में, ठीक है। यस सर। चलेगा? ठीक है यस फिर। सर। ठीक है फिर, हाँ। चलो फिर हम नेक्स्ट सैटरडे संडे मिलते हैं, देन आई शेयर ऑल एवरीथिंग। और बीच में कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ओके। ओके सर। ठीक है थैंक यू गाइस, सर। चलो फिर, चलो फिर, बाय थैंक यू बाय। सर। बाय यस सर। यस, थैंक यू। बाय बाय।